meditation, we're going to read us a portion from the book of Joshua, chapter 1 and verses 7 to 8. आज के वचन के मनन के लिए हम निकालेंगे यहोशू की किताब पहले अध्याय उसका 7 और 8वें आयत को हम पढ़ेंगे. Sorry, 7 to 9. Sorry, 7 to 9. 7, 8 और 9वें आयतों को हम पढ़ेंगे. Praise God. And the word here, I'm going to read it in English and we will have Sister Nissi to read it in to Hindi. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं. तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए. इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ तो उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा. क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा. Praise God. Hallelujah. This is a promised word which God gave to Joshua. और ये एक वायदे का वचन है जो परमेश्वर ने यहोशू के लिए दिया था. And this is also a promise in the word of God that God has given to each one of us who believes in him. और ये ऐसा एक वायदा जो है वो परमेश्वर हमारे लिए भी दिया है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं. You know, if I want to title this message, I want to title is that the good success. और यदि मैं इस प्रचार का शीर्षक देना चाहूँ तो उसका शीर्षक मैं इस प्रकार से दूंगा, एक अच्छा सफलता. You know, success and prosperity is something which all of us seek in our life. और बढ़ोतरी और सफलता ये बातें को हम सभी लोग ढूंढते रहते हैं. We also teach our children that they need to be successful and prosperous. हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि वो सफल होना है और उनका बढ़ोतरी होना है. But what is truly success or what is prosperity? लेकिन सच्चाई में सफलता क्या है और बढ़ोतरी क्या है? Many times in the world we see people who we know are successful. They might be successful maybe in cricket, or they might be successful in their music career, or maybe successful as a businessman, or be successful in many other areas of their life. हम बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में सफलता को प्राप्त करते हैं, समृद्धि को देखते हैं. शायद से कुछ लोग क्रिकेट में सफलता प्राप्त करते हैं, कुछ लोग संगीत के क्षेत्र में, कुछ लोग बिजनेस व्यापार में सफलता को प्राप्त करते हैं. But some of these people's lives, if you take, they have all the things which we ever desired about success, but in the end they commit suicide and kill themselves. यदि हम उन लोगों में से कुछ लोगों के जीवन को जब हम देखें तो उनके जीवन में ऐसी सारे बातें हैं जिसकी आशा हम करते हैं और हम सोचते हैं कि वो सफलता है, लेकिन उन लोगों के जीवन में हम देखें तो उन सारे बातों के होने के बावजूद भी वो आत्महत्या कर देते हैं. But here God tells Joshua not just about the success but about the good success that he can give. लेकिन यहाँ परमेश्वर यहोशू को कहता है, वो केवल सफलता के बारे में नहीं लेकिन एक अच्छा सफलता के बारे में परमेश्वर उनसे कहते हैं. The difference between only success and the good success is two different things altogether. और सफलता, केवल सफलता और एक अच्छा सफलता को प्राप्त करना, इन दोनों बातों में अंतर है. You can be successful by cheating also. आप दूसरे को धोखा देकर भी सफल हो सकते हैं. You can grow famous by doing bad things and wrong things also.
गलत बातों को कर कर या बुरे बातों को कर कर आप प्रसिद्ध हो सकते हैं. You can even do ministry and things for God in devious ways. और गलत रीति में भी आप सेवकाई भी कर सकते हैं. But that is not the good success which God wants for us. लेकिन वो एक अच्छा सफलता नहीं है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं. The success which God wants to give you is not only the success about money, but He wants to give you success about joy, peace, love, about the fruits of the Spirit abounding in all the goodness of God. और केवल धन की रीति में या पैसों की रीति में परमेश्वर हमको सफल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आनंद, शांति, प्रेम, ये आत्मा के जो भी फल है उसकी बहुतायत से परमेश्वर हमको सफल करना चाहते हैं. The book of Proverbs says that the blessings of the Lord does not add any sorrow to it. Praise God. और नीति वचन का पुस्तक कहता है कि परमेश्वर का जो आशीष है, परमेश्वर के जो भी आशीष है, उसके साथ दर्द या क्लेश नहीं आता है. See, because sometimes you may, your success may bring you lot of money, but also brings you lots of problem. बहुत बार आपकी सफलता आपको बहुत ज्यादा धन लेके आता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे क्लेश भी आपको सामना करना पड़ता है. Maybe your success has brought you lot of fame, but lots of enemies too. लेकिन शायद से आपका सफलता के द्वारा आप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए होंगे, लेकिन उसके कारण आपके खिलाफ बहुत सारे लोग या शत्रु भी आपके खिलाफ हुए होंगे. Maybe your success has brought you so much money, but you cannot even eat food properly. शायद से आपकी सफलता ने आपको बहुत ज्यादा पैसा या धन दिया होगा, लेकिन आप ठीक से खाना भी नहीं खा पाते हैं. You know, this is not success. This is actually, we have been captive to our success that we have made by ourselves. और ये जो है सफलता नहीं है, ये एक गुलामी के समान एक सफलता है जो हमने स्वयं प्रयत्न करके बनाया है. But today God wants to speak to us about His prosperity and about the good success that He wants to give to us. लेकिन आज परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं वो अच्छा सफलता, वो अच्छी समृद्धि के बारे में जो परमेश्वर स्वयं हमको देना चाहते हैं. And we all know, we all desire to be successful, we all desire to be prosperous. So let us see what does the Lord want and what is the keys that God gave to Joshua so that he may be prosperous and he may be successful. और हम सभी लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमको सफल बनाए, समृद्धि के अनुभव से चलाए, लेकिन आप देखेंगे कि परमेश्वर ने यहोशू को कैसा एक कुंजी या कौन सी महत्वपूर्ण बातों को उनको दिया है जिससे यहोशू सफल और समृद्धि से बढ़ सके. God had called Joshua because God saw that Joshua had a purpose to accomplish in God's kingdom. और परमेश्वर यहोशू को जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं कि यहोशू को द्वारा परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़ा मकसद का पूर्तिकरण होना जरूरी है. And see, God, calls such people, as the word of God says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. और परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और इसके द्वारा सारे बातों को तुम प्राप्त कर दोगे. Amen. So today, even as you are seeking the Lord, and as the word of God says, Joshua found favor in the eyes of God, so that he could continue to do the work of God, and that's where God tells him, these are the keys that you can do and you can be successful. और जिससे हम भी परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, उसी प्रकार यहोशू के प्रति परमेश्वर का एक कृपा दृष्टि था और उसके प्रति परमेश्वर ने उनको बल दिया ताकि वो अपनी सेवकाई को बढ़ाए रखे, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके. There was a work which God had started through Moses, and Moses had died, and the work of God had to be continued, and God called Joshua to continue the work which God had started through Moses. और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक सेवकाई का शुरुआत कर दिया था, लेकिन मूसा का मृत्यु हो जाता है और परमेश्वर ने यहोशू को चुन लिया ताकि वो कार्य जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा शुरुआत किया था उस कार्य को आगे बढ़ा सके यहोशू के जीवन के द्वारा. God had a specific plan that He had to accomplish in the kingdom of God for the house of for the Israelites, and God chose Joshua to continue that work which we had started to the life of Moses.
परमेश्वर इज़राइल के घराने के प्रति, परमेश्वर के राज्य में उनका जो स्थान है उसके प्रति एक योजना बनाए थे, और इसी योजना के पूर्तिकरण के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुन लिया था। The work that Moses did was different, but that work that Joshua had to do was totally different from what Moses did. और जिस कार्य को मूसा ने किया था वो कार्य बिल्कुल अलग था, और जो यहोशू करने वाला था वो बिल्कुल अलग था। उसी अलग कार्य के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना था। And Joshua had not seen somebody do the work which God had called Joshua to do. There was no reference point of how he could do it, but he had to trust God, believe on God, and to accomplish the things which God had seen in his life for him to accomplish. और कभी यहोशू के लिए जो परमेश्वर ने बातों को रखा था, जिन बातों को यहोशू करना था, हासिल करना था, उन बातों को होते हुए कभी भी यहोशू ने किसी के जीवन में देखा नहीं है। किसी बातों को या किसी लोग के जीवन में ऐसे बातों को उन्होंने देखा नहीं, कभी भी अनुभव नहीं किया है, लेकिन उनको केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना था, विश्वास करना था, ताकि ये अलग बातें या अनमोल बातों को वो पूरा कर सके परमेश्वर के लिए। And Jesus, when he came to fulfill his work from the Father, and after his time, he appointed disciples to carry out the work which Jesus has started, and that work after the disciples were handed over to other people to carry out the same work which Jesus has started through them. और हम देख सकते हैं यीशु मसीह जब भी हमारे लिए इस धरती पर आए, उन्होंने अपना कार्य को, अपने सेवकाई को शुरुआत किया, और उसके बाद अपना कार्य की शुरुआत जिसको उन्होंने किया था, उसी बातों को उन्होंने अपने चेलों को सौंप दिया, ताकि वो उसको बनाए रखे, और चेलों ने उसी सेवकाई को अपने दूसरे लोगों को दे दिया, ताकि जिस बात की शुरुआत यीशु मसीह ने किया था, उसी बात का लगातार रीति में बढ़ोतरी होता रहे। The work which Jesus did, the disciples did something different, but it was the same principle of the work that was carried on. What the disciples did, the next generation, what they did was slightly different because it was meant for that generation. And even today, God has called us into His kingdom to be part of this great work of God. The question is, are you part of this kingdom and the work of God? और हम देख सकते हैं जो सेवकाई यीशु मसीह ने किया उससे थोड़ा अलग सेवकाई ये चेले लोग करते हैं। सिद्धांत जो है वो मूल्य सिद्धांत समान रीति में, लेकिन सेवकाई की रीति में बदलावट हम देख सकते हैं। और उसके बाद चेलों के बाद जो अलग लोग आए थे सेवकाई करने के लिए, वो उनके पीढ़ी के अनुसार उनमें भी थोड़ा बदलावट को हम देख सकते हैं। और परमेश्वर ने हमको परमेश्वर के राज्य में इसलिए बुलाया ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े कार्य को हम कर सके। और यह प्रश्न ये है कि क्या आप तैयार हो उस बड़े कार्य को करने के लिए? Joshua, when he woke up every day, his life was not about what is life, about the daily routine of life. He had something from God which was much greater than his life. और जब भी यहोशू हर दिन सुबह उठते थे, तभी वो अपने स्वयं के बातों के ऊपर ध्यान देने से ज्यादा वो परमेश्वर की बातों के ऊपर, परमेश्वर ने जिस बातों के लिए उनको चुना है उस बातों के प्रति वो अपना ध्यान केंद्रित करता था। He had something from God which was much more bigger, which was much more challenging than the ordinary life which he was living. और जो सामान्य जीवन को वो जी रहे थे उससे बढ़कर कुछ बातों को वो देख रहे हैं, जो परमेश्वर ने जो चुनौती उसके सामने रखा है, जो बुलावट उसके सामने रखा है, वो उसके साधारण जीवन से बढ़कर था। Let me remind you, people of God, the call of God is always like this. परमेश्वर के लोगों, आपको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो बुलाहट है वो हमेशा इसी प्रकार का होता है। It is much bigger than what you know about your own life. It is much greater. You have not seen somebody do it. God calls you into a unique thing which you have to depend upon His grace and His strength that you can continue to do what He has called you to do. Praise God. और परमेश्वर भी आपको इसी प्रकार की कुछ बातों के लिए बुलाते हैं। शायद से आपने उस बात के बारे में सुने भी नहीं होगे या किसी व्यक्ति को ऐसे करते हुए आप देखे भी नहीं होगे, और जो आप अपने बारे में जानते हैं उससे भी बढ़कर बातों को परमेश्वर आपके जीवन में करते हैं। तो आपको परमेश्वर की इस कृपा के अधीन रहना है ताकि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन से होता रहे। And Joshua had to trust God. He did not see anyone else do what God had called him to do. So he had to trust God. He has to ask direction from God. He had to wait upon God and seek God for everything that he had to do in his life.
इसलिए यहोशू को परमेश्वर के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना था, क्योंकि उन्होंने जो बातों को वो करना चाहते हैं उन बातों को किसी और व्यक्ति करते हुए उन्होंने देखा नहीं है। तो जो भी मार्गदर्शन है वो केवल परमेश्वर की ओर से वो प्राप्त कर सकते हैं। वो उनके ऊपर भरोसा कर कर आगे बढ़ रहे हैं। We know the story of Jericho, the great city, which was a big fortified city. Joshua did not know how to go and receive the blessings from that city, but God told him, go and walk around Jericho 7 days, and the seventh day 7 times, and then blow the trumpet. The city will be destroyed. और हम देख सकते हैं किस प्रकार से यरीहो शहर का जो बहुत बड़ा दृढ़ दीवार था, जो उस शहर के चारों तरफ लगा हुआ था, कितना बड़ा दृढ़ दीवार था वो। और यहोशू चाहता था कि वो उस शहर का जो भी आशीष है उसको प्राप्त करे, लेकिन वो जानता नहीं था कि वो किस प्रकार से करना। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा कि उस दीवार के चारों ओर उसके आसपास चलना है, और उसके चारों ओर वो चलने लगे, और 7वें दिन वो 7 बार चलने लगे, और वो दीवार को वो लोग तोड़ देते हैं। He had never seen Moses do this. He had never seen somebody else do this, but he had to trust God and to know that when I obey God, when I do as God commands me, when I go and walk around the city, when I do this at the 7 days, 7 times, God is going to give me the victory. Praise God. Hallelujah. यहोशू ने कभी भी मूसा को इस प्रकार के एक अद्भुत कार्य को करते हुए देखा नहीं है, या किसी और व्यक्ति को भी इस प्रकार के कार्य करते हुए देखा नहीं है। लेकिन वो जानते थे, यदि मैं परमेश्वर के वाक्यों को सुनूं, परमेश्वर की आज्ञा को मानूं, उस दीवार के आर पार चारों ओर चलूं, और 7वें दिन 7 बार चलूं, तो परमेश्वर निश्चय मेरे लिए कार्य करेंगे। Can you imagine yourself if God told you that you have to go and walk around something to receive that for yourself? That, can you imagine if you had to go and walk around that? You may think, God, how is this possible? If I walk, what will happen? और अब जस्ट अब केवल इसको सोचना है, कल्पना कीजिए, यदि परमेश्वर आपसे कहे कि कुछ बात को प्राप्त करना है, तो आपको उस कार्य के पास जाकर, उस चीज के पास जाकर चारों ओर चलते रहना है ताकि आप उसको प्राप्त करें। तो क्या परमेश्वर से आप इस प्रकार से पूछेंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों होगा, ऐसे कैसा हो सकता है? यदि मैं उसके चारों ओर चलूं तो क्या मैं उसको प्राप्त कर सकूंगा? In human sense, walking around the wall of Jericho did not mean anything. In human sense, it was an utter mistake these people were doing. People must be looking down upon them and laughing at them. But for God, it meant that people were obedient to His word, and He was able to shake the heavens for them and do everything that was possible to bring the answer to what He has done for them. Praise God. Hallelujah. और मनुष्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो इस दीवार के चारों ओर चलने से कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य की दृष्टि से ये लोग बहुत बड़ी गलती को कर रहे हैं, लेकिन जब लोगों ने, जो दूसरे शहर के लोगों ने उनको देखकर उनके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन जब भी परमेश्वर ने उनकी ओर देखा तभी वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे थे। तो परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग को हिलाकर परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए तैयार थे। Many times, even today, when God tells us to pray, prayer may seem to be a waste of time. I am sitting and praying, but nothing is happening. I have been praying, but nothing is happening. But child of God, when God tells you to pray, start praying, start fasting, start doing things what God tells you to, because He will move the heavens for you if you are obedient to His word. Praise God. Hallelujah. आपको परमेश्वर की आत्मा कभी कभी प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना को उत्तर में प्राप्त नहीं करता हूँ। तो आपको केवल प्रार्थना करते रहना है, आपको केवल प्रार्थना उपवास करना है। जब भी परमेश्वर की आत्मा आपको उपवास करने के लिए कहते हैं, आपको केवल आज्ञा को मानना है। जब भी आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देने के लिए स्वर्ग को भी हिला देंगे। Because when we patiently do what God is telling us to do, God is faithful to do what He has promised to do. Hallelujah. जब भी हम धीरज के साथ जिन बातों को परमेश्वर ने करने के लिए कहा है, उस बातों को जब भी हम करेंगे, तभी परमेश्वर विश्वास योग्य ठहरकर हमारी उन बातों के प्रति कार्य करेंगे। When you fervently pray and when you fervently do what God is telling you to do, God is faithful to bring the answers into your life, the miracles into your life, which He has promised for you. Praise God. Hallelujah. जब भी आप उत्साह के साथ निरंतर प्रार्थना को करते रहेंगे, उपवास को करते रहेंगे, तो जिन बातों का वादा परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, उन बातों को परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में प्रदान करेंगे।
For Joshua, God had told him that you have to go and divide the land and give it to the people and take it from the other people who are holding the land and give it to the people of Israel. और यहोशू से परमेश्वर ने कहा था कि उसको उस देश को, उस शहर को हासिल कर लेना है और उस देश को विभाजन कर कर लोगों को दे देना है. Imagine like this. It is let me tell you as an example so that you can understand this. और मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ ताकि आप इसको ठीक प्रकार से समझ सके. Imagine the most expensive place in the city where you live. God tells you, I am going to give that place to you. आप कल्पना कीजिए उस शहर के सबसे अमीर जगह जो है, अच्छा जगह जो है, परमेश्वर कहता है कि आपको उस जगह मिल जाएगा, आप वहां रह सकते हैं. And all the houses in that place will be given to your children. और उस जगह में जो भी घर है वो सारे घर आपके बच्चों को दे दिया जाएगा. Now go and take it for yourself and take the houses and take it for your children. अभी जाओ उस घर को और छोटे छोटे घर को ले लीजिए आपके लिए और आपके बच्चों के लिए. What does this mean? How will this happen? और इसका मतलब क्या है? ये कैसे हो सकता है? For Joshua, it meant that he had to go to every city and tell that people of the city that this city belongs to us now. We are taking this city. अब इसके लिए यहोशू को क्या करना था? वो हर एक शहर में जाना था और यहोशू उनको बताना था कि ये शहर हमारे लिए है और हम इस शहर के ऊपर अपना कब्जा जमाने वाले हैं. For example, Joshua goes to one house, knocks the door of the house, and the person opens and says, I have come to take this house. आप सोचिए जरा कि यहोशू एक घर में जाता है, घर में खटखटाता है और कहता है ये इस घर को लेने के लिए मैं अभी आया हूँ. And first of all, the person may ask, are you out of your mind? वो शायद से वो दूसरा व्यक्ति पूछेगा, क्या तुम पागल हो? Or from what are you talking about? This house is mine. How come you can take this? तुम किस बातों को कर रहे हो? ये घर मेरा है और तुम इसको कैसे ले सकते हो? But Joshua said, God told me this house belongs to me, so I am taking it. Get out from this house. लेकिन यहोशू कहेगा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ये घर मेरा है, तो इस घर से तुझे निकलना पड़ेगा. This was not an easy thing. People, it was not an easy thing. ये एक आसान काम नहीं था. परमेश्वर के लोगों, आप समझना है इसको. People of God, many times we read this, but we are forgetting what did God tell Joshua. It was a very, very difficult thing. और बहुत बार हम इन बातों को पढ़ते हैं, गद्यांशों को पढ़ते हैं, लेकिन जिन बातों को करने के लिए यहोशू को परमेश्वर ने बताया था वो बहुत ही कठिन बातें थी. It was almost an impossible thing. That means you are taking some things that don't belong to you and making it your own because your God said this. और ये लगभग असंभव बातें थी क्योंकि जिन बातों को आपके वश में नहीं है, उन बातों को आप जाकर कहते कि ये मेरा है और उसके ऊपर आप कब्जा कर लेते क्योंकि आपका परमेश्वर ने आपको कहा है. And many times when they went to the cities, when they saw the people, they were like giants, big people. They cannot even open their mouth to talk to these people. और कोई शहर में जब भी वो गए तो वो विशाल लोगों को वो देखते हैं और वो डर जाते हैं और उन लोगों से वो बातें भी नहीं कर पाते हैं. They are afraid to even start a conversation, forget asking them for their house. They are even afraid to even talk to them and look properly at their face. और उन लोगों को देखना, उन लोगों से घर की बातें करना तो दूर की बात है, लेकिन केवल उनकी ओर देखना या उनसे कुछ बातें करने की शुरुआत करना भी बहुत कठिन हो रहा था. This is the gist of our life also. ये भी हमारे जीवन का एक छोटा सा एक व्याख्या है. God tells you big things that He wants to give you. परमेश्वर बड़े बड़े बातों को बताते हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहते हैं. But you cannot even imagine or you cannot even think how you will receive this, and so you are afraid. और आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, आप समझ नहीं पाते कि इसको आप कैसे हासिल करेंगे और इसके लिए आप भयभीत हो जाते हैं. Maybe God tells you, I want to give you a ministry and the ministry is going to be like this and many things are going to happen, many people, but you cannot even think how you will do this. और शायद से परमेश्वर आपसे कहेंगे कि मैं तुझे एक सेवकाई दूंगा और सेवकाई इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, और आप सोचते होंगे कि ये कैसे होगा, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ.
Or maybe God wants to tell you, He wants to give you a business which is going to be in different countries, and you are thinking, how will this happen? I don't know. I can't talk languages. I don't know how to travel. And you are afraid and running away from that. जैसे परमेश्वर आपसे कहेंगे कि आपको मैं एक व्यापार शुरुआत करना, आपके लिए एक व्यापार मैं देना चाहता हूँ, और वो व्यापार दुनिया के अलग अलग कोने में होंगे, और आप कहेंगे कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अलग अलग भाषा को भी कहने पाता हूँ, मुझे सफर करना नहीं पता, और इस बातों को कहकर आप डर जाते हैं। Maybe God is telling you, I'm going to send your children to better schools, and you are thinking, how will the money come from? Where will it come from? How will I pay this? You are all confused about this. You are worried now. You're saying, God, I don't want this. शायद से परमेश्वर आपसे कहेंगे कि आपके बच्चों को और भी अच्छे स्कूल में मैं रखना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उनका फीस के लिए मैं क्या करूंगा, कैसे हो सकता है, और मैं ये नहीं कर सकता हूँ। Many times when you hear the voice of God and the plans of God, that makes you so afraid that you run back to do what you have been doing before, because that is there, you will find safety there. और बहुत बार जो परमेश्वर हमसे करने के लिए कहते हैं, उन बातों को सुनकर हम भयभीत हो जाते हैं और हम पीछे भागते हैं, और जिन बातों को हम कर रहे थे उन्हीं बातों में हम लगे रहते हैं, क्योंकि वो बातें जो है उसमें हम सुरक्षा के अनुभव को हम करते हैं। Because many times the plans of God are so big and so great and so amazing that you cannot even think how you will do this. क्योंकि कभी कभी परमेश्वर का योजना जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा विशाल होता है, जो हम समझ भी नहीं पाते हैं, और उसके बाद उस बातों को हम ग्रहण भी नहीं कर पाते हमारे मन में। And so people become afraid, people become challenged when the challenges come. So they want to run back and do the old things that they were doing and just be, Lord, I just want to be comfortable here, I just want to keep doing this. Please, Lord, leave me alone. और वो इन बातों को, जो बड़े बातों को परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, उनको देखकर वो डर जाते हैं और पीछे भाग जाते हैं, और वो परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं जो स्थान में मैं हूँ वहां मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। Have you been there like this? Have you ever felt being embarrassed when God tells you to do something, or when the promise of God has come to your life? Is there anyone who has felt embarrassed like this? और क्या आप में से किसी लोगों ने इस प्रकार से एक शर्मिंदगी को महसूस किया है, या फिर बुरा अलग एक विचार आपके मन में है जब भी परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े कार्यों को वादा किया हो? See, many times, if the work of, God is so great, and the work of God is also so great. If you want to do the work of God, it is always beyond your imagination, it is beyond your ability, it is beyond your capacity to do it. और जो भी परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है, वो महान कार्य को करते हैं, और आपके प्रति उनकी जो योजना है वो भी महान है, जो आपके सोचने से बढ़कर है, आपकी कल्पनाओं से बढ़कर और आपकी काबिलियत से भी बढ़कर है। And you may think, why is this pastor today preaching about the great things of God? We are only ordinary people here in this meeting, and why am I preaching about the great things of God that God wants to do? और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि परमेश्वर के दास आज इतने परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों के बारे में क्यों कहते हैं, हम तो एक साधारण लोग हैं और हमको ये बड़े बड़े बातों को क्यों सुनना है? Because it is through ordinary people that God does extraordinary things when they start believing in what God can do through their lives. क्योंकि ये साधारण व्यक्तियों के द्वारा ही परमेश्वर असाधारण बातों को करते हैं, जब भी वो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। There is nothing impossible that God cannot do with your life. If you believe and say, Lord, here I am, use me. I am willing to stretch my boundaries of my heart in prayer in doing the things which you want me to do. Praise God. Hallelujah. और परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे बातें करेंगे जिसकी सोच आपके लिए असंभव होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप परमेश्वर से केवल कहना है, परमेश्वर मैं मेरे हृदय को आपके सामने खोल देता हूँ, आप मेरा इस्तेमाल कीजिए, मेरे प्रार्थना की सीमाओं को तोड़कर मैं और भी आपके उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। Do you know, when I started the ministry, I did not know how to preach properly. और आप जानते हैं, जब भी मैंने मेरा सेवका शुरुआत किया था, तभी मैं ठीक से प्रचार भी नहीं कर पाता था। Maybe sometimes I would speak the same message 3 or 4 times. कभी-कभी वो एक ही प्रचार को मैं 3-4 बार बोलता था।
But I cried to God, I went into God's presence and sought Him and prayed to Him, and God changed my message. और मैं परमेश्वर के पास जाकर मैं रोने लगा और परमेश्वर को खोजने लगा और परमेश्वर ने मेरे प्रचार की रीति को ही बदल दिया. Some Sundays I would preach 4 messages in 4 different places. और कोई कोई रविवार के दिन में चार प्रचार को या 4 सरमन्स को प्रचार करता था और 4 अलग अलग जगहों पे प्रचार करता था. And I would speak 4 messages, 4 different. I spoke to God and said, Lord, I don't want to speak the single message ever again, but give me new messages every time. और जो प्रवचन को मैं देता था, प्रचार को मैं करता था, वो चारों जगह पर अलग अलग होता था. और मैंने परमेश्वर से कहा था, परमेश्वर मुझे एक प्रचार को बार बार दोहराना नहीं है. And so God started to use me, and most of the Sundays I would speak 4 messages, 4 different services, but I never got tired because God was with me. और परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुन लिया और परमेश्वर ने कोई रविवार जिधर मुझे 4 जगह पर प्रचार करना होता था, चारों जगह पर अलग अलग बातों को, अलग अलग विषय को प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया. और मैं कभी भी तक नहीं गया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बल दिया था. When your work is greater than what you can imagine, the power of God is much greater than you can imagine, because God is the one who strengthens you to do it. Praise God. Hallelujah. जब भी आप समझते हैं कि आपका जो कार्य है वो आपके कल्पना से भी बढ़कर है, आपके बल से भी बढ़कर है, तो आपको समझना है कि परमेश्वर का बल भी आपके कार्य से बढ़कर है, आपके सामने जो कठिनाई है उससे भी बढ़कर है. When you realize the call of God upon your life and don't run away from the call, but say, Lord, here I am, use me, change me, Lord, mold me, Lord, and send me into that purpose, you will see the power of God that works through your life. Praise God. और जब भी आप परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर की इस बुलाहट को सुनकर आपको पीछे दौड़ना नहीं है, लेकिन उनके पास जाना है और कहना है, परमेश्वर मैं हूँ यहाँ, मुझे इस्तेमाल कीजिए, मुझे बदल दीजिए, मुझे आपकी इच्छा के अनुसार बना दीजिए, और परमेश्वर निश्चय आपको इस्तेमाल करेंगे. Of course, there will be challenges, there will be difficulties, there will be problems, but it is there in the problem, when you seek God, you will find the strength and you will find the solution to the problem. और निश्चय है कि आपके जीवन में संघर्ष को, कठिनाई को, क्लेश को आप सामना करेंगे, लेकिन वो संकट और कठिनाइयों के बीच में जब भी आप परमेश्वर को बुलाएंगे, तभी परमेश्वर का बल आप प्राप्त करेंगे और उस समस्या को हल को भी आप प्राप्त करेंगे. Many times I see young people who are working, and I ask them, how many years you have been in this position? और कुछ नौजवान लोगों को जो काम करते हैं, उनको मैं पूछता हूँ कि कितने साल से आप इस स्थान में या इस पदवी में हैं. And they say, Pastor, I'm very happy. I've been here for 10 years, doing same job, same position, very happy here. और वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर के दास में बहुत ही ज्यादा आनंदित हूँ और इसी स्थान में मैं 10 साल से बैठ के कार्य कर रहा हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा आनंदित हूँ. I say, you are wasting your time. और मैं उनसे कहता हूँ कि तुम तुम्हारे समय को व्यर्थ कर रहे हो. And they tell me, what? I am wasting my time. I go to work. I'm earning money. How you're saying you're wasting your time? और वो लोग पूछते कि किस प्रकार से मैं मेरे समय को व्यर्थ कर रहा हूँ. मैं तो हर दिन काम करता हूँ, मैं यहाँ आकर मैं काम करता हूँ. But I tell them, if you are not being promoted or if you are not growing in your career, you are wasting your time. यदि आप अपने व्यवसाय में बढ़ नहीं रहा है या फिर आपका बढ़ावा नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप अपने समय को बेकार कर रहे हो. I spoke to a young man who was exactly in the same position. I prophesied to him, God is going to change your boundaries of your workplace and He's going to do a miracle in your life. और मैंने हाल ही में एक नौजवान को देखा जो इसी प्रकार के अवस्था में था और वो इस स्थान में कई साल से काम कर रहा था. मैंने उनको भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर आपके इस अवस्था को बदल रहे हैं और आपको एक प्रमोशन और आपके एक सीमाओं को बढ़ाने वाले हैं. And he called me a few weeks back saying, Pastor, I'm going to resign from this job because I cannot manage this promotion. I cannot do this. और कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे कॉल कर बताया, परमेश्वर के दास में मेरी नौकरी से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, वहां से मैं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये प्रमोशन को मैं उसको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ. Because I don't know how to do things. I'm totally confused. I'm stressed. I'm working so long. I told him, this is where God wants to take you. Unless you are stressed, unless you are stretched, you will never grow.
और वो कहते हैं कि परमेश्वर के दास, मैं नहीं जानता कि मैं इस प्रकार के काम को कैसे करूं, और अलग अलग प्रकार की चुनौती मेरे सामने है। तभी मैंने उनसे कहा कि इसी स्थान में परमेश्वर तुझे रखना चाहता है। जब तक तो तेरे जीवन में कठिनाई नहीं आएगा, जब तक तुम्हारे अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा, तब तक तू इसी स्थान में रहेगा और तू बढ़ोतरी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। We all want to be in our comfort zones, not to be stretched, not to be, but we want to do the same thing, easy thing we want to do and live. और हम सभी लोग अपने आश्वासन के उस क्षेत्र में रहना चाहते हैं, और कठिनाई को या फिर कुछ तकलीफ को सामना करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। So I told him, I'll give you the key of what you have to do. Pray every day. Before you go to a meeting, pray. In the meeting, pray. Prophesy about things. And I told him this keys of what to do. और मैंने उनको कुछ मूल्य सिद्धांतों को या कुछ कुंजियों को मैंने उनको दिया। मैंने कहा कि हर दिन सुबह पहले प्रार्थना कीजिए, ऑफिस में जाने से पहले प्रार्थना कीजिए, मीटिंग के बीच में प्रार्थना कीजिए, और बहुत सारे बातों को भी मैंने उनको बता के दिया। Now he tells me everything is working so well. और अभी वो मुझसे कहता है कि पासवान, अभी सब कुछ ठीक से चल रहा है। Not that it is not challenging, it is very challenging, but I always pray now. I depend on God. I don't depend on my strength. So God is helping me. Praise God. Hallelujah. ऐसा नहीं कि मेरे चुनौती कम हो गया, लेकिन चुनौतियां अभी भी है, लेकिन मैं भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर हूँ। परमेश्वर सारे बातों को देख लेते हैं। See, when your ministry grows, challenge also grows, difficulty also grows. But remember, go to God. Ask Him for your strength. He will help you. और आपको समझना, जब भी आप सेवका करते तो सेवका में भी आप तकलीफ को, चुनौतियों को सामना करेंगे, लेकिन परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर के बल के लिए, सामर्थ के लिए प्रार्थना करना है। Some people say, oh, I cannot do this because they depend on their own strength. But some people say, I can do all things through Christ who gives me strength. कुछ लोग कहते हैं मैं इसको नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वो लोग अपने स्वयं के बल पर या काबिलियत पर विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि मुझे सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। So let us see how Joshua could accomplish all the great things which God told him to do. Very fast, very short and very sweet. I'm going to tell you this. और अभी मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ किस प्रकार से योशु ने, परमेश्वर ने जिस बुलावट के लिए उसको बुलाया था, उन सारे बातों को उसने कर लिया है। इसका हम जल्दी से देखेंगे और स्मरण करेंगे। Number one, God told him, be strong and courageous. Don't be afraid. Number one, don't be afraid. सबसे पहला परमेश्वर को कहा कि हिया बांधकर दृढ़ हो जाओ और तुझे डरना नहीं है। Can you say to yourself, be strong, be courageous, don't be afraid, for God is with you. Praise God. क्या आप कह सकते हैं कि आपको हिया बांधना है, दृढ़ रहना है, डरना नहीं है? डरना नहीं है क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। You need God's grace, to do great things. You need God's strength to do great things. And the first thing that comes to your life when you want to do something great is, can I do it? I can't do it. No, I'm running away. आपको यदि बड़ा कार्य करना है तो परमेश्वर का कृपा का जरूरत है, परमेश्वर का सामर्थ का जरूरत है। जब भी हमारे सामने परमेश्वर कुछ बातों को रखते हैं, हम दिल से डर जाते हैं और इस बात से पीछे हट जाते हैं। Recently in my office, my boss called me and said, we want to give you some more work, things like this, he said. I said, no problem, give it to me. और हाल ही में मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मैं आपको कुछ और काम को देना चाहता हूँ और ऐसे सब बातों को करना है। मैंने कहा कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे दे दीजिए। I told you, give me whatever work you want, whatever nobody cannot do, give it to me, I will do it. मैंने उनसे कहा कि जो भी कार्य आप मुझे करना चाहते हैं, मुझसे करवाना चाहते हैं, उन बातों को आप दे दीजिए, और जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं उसको भी आप दे दीजिए, मैं उसको कर लूंगा। Because I don't do it alone, I do it with the grace of God. Praise God. क्योंकि मैं उन बातों को स्वयं नहीं करता हूँ, मैं परमेश्वर की कृपा के द्वारा उन बातों को करता हूँ। I am dependent on God's grace and His strength in my life. Praise God. मैं परमेश्वर की कृपा के ऊपर और परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर हूँ। So you know what happened? His boss called me and said, can you do his work also? My boss's work also. और फिर उनके बॉस ने मुझे कॉल कर मुझे बताया क्या कि मैं उनका कार्य करूं, उनका कुछ कार्य को कर दूं। I said, give it to me. मैंने कहा दे दीजिए। Because I am not the one doing it. It is God who does it through me. Praise God. क्योंकि मैं मेरे सामर्थ से नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा कर रहा हूं। So I want to tell you, be strong, be courageous. God is with you. तो आप
आपको हियाव बांधना है और आपको दृढ़ रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। Holy Spirit is speaking to some people who are feeling weak, who are feeling tired, who are feeling fearful. Be strong, be courageous, because God is with you. Praise God. परमेश्वर की आत्मा उन लोगों से बातें करना चाहता है जो बलहीन है, जो थके हुए हैं और जो भयभीत है। परमेश्वर की आत्मा आपसे कहते हैं कि परमेश्वर आपको बलवंत करेंगे, परमेश्वर आपके संग है। Number 2, do the things what the Word of God tells you to do. Think about it day and night, how you will bring that to your life. और परमेश्वर के वचन जिन बातों को करने के लिए कहते हैं उन बातों को करना है, यही हमारा दूसरा बिंदु है। और इन बातों को आप दिन रात मनन करते रहना है, ताकि आप परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा है वो आपके जीवन में भी लागू कर सके। I mean, what does it mean to meditate upon the Word of God? That means to think. If the Word says, don't be anxious, think, how will I not be anxious? I'm feeling having this situation. I'm feeling fearful. I'm feeling tired. But the Word says, don't be anxious. Think about, ask the Holy Spirit. Think, let this be your thought in your life every day. How will I bring the Word of God alive into my life? और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना, उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है व्याकुल ना हो। तभी आप सोचना मैं किस प्रकार से व्याकुलता से दूर भाग सकता हूँ, और मैं थका हुआ हूँ या फिर मेरे अंदर भय आ रहा है, तो इस बातों को मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कैसे उसके ऊपर जीत हासिल कर सकता हूँ। इन बातों को सोचते रहना है, मनन करते रहना है, ताकि आप उस बातों को आपके जीवन में लागू कर सके। When you feel that there are things in your family or in your surrounding which you cannot change, believe that God has called you to prophesy good things, that surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I'm going to be strong in the Lord. Hallelujah. जब भी आपके वातावरण में, आपके घर के आसपास से, परिवार में कुछ बातों को आप देखकर दुखी है, तो आपको अच्छी बातों की भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। आपको भविष्यवाणी करना है और कहना है कि निश्चय करुणा और भलाई मेरे पीछे पीछे सर्वदा बनी रहेगी, और परमेश्वर की इन बातों को कहकर आपको वहां जीत हासिल करना है। Here in Joshua chapter 1 verses 8 says, the book of the Lord shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, and to observe to do according to what it says. Praise God. और यहाँ यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय उसका 8वें आयत में इस प्रकार से लिखा जाता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना। So when you keep speaking the word of God, when you keep speaking, it's very important, people of God, that you keep speaking the word of God through your mouth. Keep repeating God's word, the promises of God, the plans of God, the purpose of God. Keep saying it always. When you have time, keep saying it. Praise God. Hallelujah. तो परमेश्वर के वचन को आपको निरंतर बोलते रहना है, कहते रहना है, अपने होठों से उसको अंगीकार करते रहना है। जब ये परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर के योजनाओं को, परमेश्वर के बातों को अपने होठों से कहते रहना है, इसमें बहुत बड़ा सामर्थ है। Keep memorizing God's word always. परमेश्वर के वचन को पढ़ लेना है, उसको याद रखना है। See, I keep these small notes. Every time I'm memorizing a small word of God, I write these notes and keep them so that I will remember this. I can repeat this, write it out. You can keep these small notes where you're learning new word of God. Praise God. और आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक छोटा सा कागज का टुकड़े में मैं वचन लिख लेता हूँ, और जब भी मैं उस वचन को कंठस्थ करता हूँ, उसको देखकर मैं कंठस्थ करता हूँ और उसको याद रखता हूँ, उस वचन को याद करता हूँ। और आप लोग भी इस प्रकार से लिख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। It does not cost much money, only very little money to do this, isn't it? We all can do this. Write promises of God's word in a paper and keep it with you. Pick one of them, read it loudly, you by heart it. Take the next one, keep it loudly, you by heart it. In your prayer time you can do it. While you're in your study table you can put it, wherever you can do it, so that your mouth is filled with the word of, because that is what God told Joshua, let your mouth to keep speaking God's word. और आप ये बातों को करना बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, ये साधारण एक कागज है उसमें जिसमें आप वचन को लिख सकते हैं, परमेश्वर के वायदों को लिख सकते हैं और उसको रखना है। और आप जब भी आप काम करते हो या फिर अपने टेबल पर रख सकते हैं और उसको एक एक वचन को निकालना है, पढ़ना है, उसको कंठस्थ कर लेना है, और उसको अपने प्रार्थना जीवन में भी आप कर सकते हैं, बोलते रहना है। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू से परमेश्वर के वचन को, व्यवस्था को, उसको रात दिन मनन करते रहना है और कभी भी उसको अपने मुंह से हटाना नहीं है। If I tell you to do this like you take medicine every day, your life will change. और यदि मैं आपको कहूँ कि आप इन बातों को
कीजिए और एक दवाई के समान उसको करते रहिए, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बदलाव को आप देखेंगे। There are 52 weeks in a year. एक साल में 52 हफ्ते हैं। If you can study one word of God every week, one word of God every week, you will learn 52 word of God in 1 year. यदि आप हर एक हफ्ते में एक वचन को पढ़े, तो आप 52 एक साल में 52 वचनों को पढ़ सकते हैं। I see Pastor Rohida's family has got small children, so it is easy when you're teaching small children. You can also learn with them. मैं देख सकता हूँ पास्टर रोहिदास के परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को सिखाना है बहुत ही आसान होता है, उनके साथ हम भी सीख सकते हैं। I know Sister Maria Fernandez is teaching the word of God to some small children, so while she is teaching, you can also learn God's word. और सिस्टर मरिया फर्नांडिस को मैं जानता हूँ, जो छोटे बच्चों को परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं। जब ये परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, हम भी वचन को सीख सकते हैं। Back when we were in Australia, my wife would open our car garage, and every Friday evening she would call all the children from the community to come to our house, and she would make some nice cupcakes for them and teach them some Bible stories and teach them how to pray, and also one memory verse every week. और जब भी हम ऑस्ट्रेलिया में थे, तभी मुझे याद है मेरी पत्नी जो है हर एक शुक्रवार को हमारा कार रखने का गैराज को खोलती थी, और वहाँ हमारे घर के आसपास के सारे बच्चों को बुलाती थी, और सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे होते थे और उनको कुछ छोटा से खाने का कपकेक्स खाने को देते थे, और वो लोग उसको खाते थे। और मेरी पत्नी उनको वचन सिखाती थी, किस प्रकार से प्रार्थना करना है उसको भी सिखाती थी, और एक वचन को कंठस्थ करने के लिए, उसको पढ़ लेने के लिए उनको अनुरोध करती थी, और वो लोग सीख जाते थे। So you can also do small things, but somehow learn by the word of God and speak it with your mouth. Keep speaking the word of God with your mouth, because what your mouth speaks becomes your life. तो इन बातों को, छोटे छोटे बातों को आप भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि परमेश्वर के वचन को हमेशा अपने होठों में रखना है और उसको बोलते रहना है। And the third one, God tells Joshua again, be strong and courageous and do not be dismayed, for I, your Lord, will be with you wherever you go. और फिर से परमेश्वर यहोशू से कहता है, यह बांधकर दृढ़ हो जा, भय न का, और परमेश्वर सदैव तेरे साथ बना रहेगा। Do you know what is the meaning of being dismayed? The word dismayed means don't make your God small. Make him big always in your trouble. Praise God. Many times when trouble comes to us, we say, oh, why is this happening to me? Always this happens to me. No one is taking care of me. Crying. But God is saying, you are making me small. Make me big. Say, thank God. He has kept me alive. Thank God for He is able to deliver me. He is able to send His angels for me. Don't make your God small. Make Him big through your praises. Praise God. और ये निराश या जब हमारा मन जब कच्चा हो जाता है, उसका अर्थ क्या है? हम परमेश्वर की काबिलियत को छोटा कर देता है। हमारे समस्या के सामने हम कह देता है कि समस्या कितना बड़ा है, मैं क्या करूंगा, मुझे कौन बचाएगा, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है। तो परमेश्वर आपसे कहता है कि ये सारे बातों को आप क्यों कहते हैं, इस सारे बातों को कर आप परमेश्वर को छोटा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप परमेश्वर को बड़ा कीजिए। कहना है, परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे सामर्थ्य दिया, धन्यवाद आप मेरे लिए कार्य करेंगे, परमेश्वर धन्यवाद आप मेरे लिए स्वर्ग को हिलाएंगे। इन सारे बातों को कर आपको परमेश्वर को महान करना है। So let's do the three things which God told us. Number one, not be afraid, knowing that God is with us. He has called us into the work. He will give us the grace. Number two, to meditate upon the word of God, to do what the word of God says, to speak it with our heart. Number three, never make God small in your problem. Lift Him up in your problem, for He is with you, and He will go with you, and He will give you good success and prosperity in your life. Praise God. और 3 बिंदुओं को एक और बार हम देखेंगे। सबसे पहला बिंदु है कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कृपा सदैव आपके साथ बना रहेगा। और दूसरा है, परमेश्वर की व्यवस्था को सदैव आप बनाए रखना है, आपके साथ मनन करते रहना है, परमेश्वर के वचन को सदैव आपके होठों से कहते रहना है। तीसरा बिंदु है, आपके समस्याओं के सामने परमेश्वर को छोटा नहीं करना है, परमेश्वर को ऊंचा उठाते रहना है, और इसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक अच्छा सफलता और एक अच्छी समृद्धि को प्रदान करेंगे। What many other people are not able to do, God will enable you to do this. Praise God.
और जो कई लोग नहीं कर पाते हैं, उन बातों को करने के लिए परमेश्वर आपको काबिल बना देंगे। I am prophesying this to some people. Can some of you say, I receive it in the name of Jesus? और इन बातों की भविष्यवाणी मैं कुछ लोगों के लिए कर रहा हूँ, और क्या आप लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं? What the world cannot do, some of you are about to do this because you trust God. You believe that God has called you to it. You know that He is able to give you the strength for it. And He's saying, be strong and courageous, for I am with you wherever you go. Praise God. और कुछ लोग, इनमें आप लोगों से कुछ लोगों के द्वारा परमेश्वर ऐसे कुछ बातों को करना चाहते हैं जो दुनिया में कोई लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा आपको परमेश्वर को कृपा देंगे ताकि उन बातों को आप करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर सदैव आपके साथ है। So with this, we are going to pray and we're going to seek God and we're going to ask God to help us in this season while we are praying. As we have heard God's word, we're also going to ask the Lord to give us the grace to obey this. Praise God. और अभी हम प्रार्थना की ओर जाएंगे ताकि हम इन वचन के लिए प्रार्थना कर सके, और हम परमेश्वर से वो कृपा के लिए भी दुआ करेंगे ताकि जिन वचनों को हमने सुना है उसको मानना, उसका आज्ञा पालन करते हम आगे बढ़ सके। So shall we all lift up our hands to our God and this evening time and ask Him, Lord, I need to be successful, Lord. I want to be successful and to have prosperity according to what you have promised in your word. और हम अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में सफलता और समृद्धि का अनुभव मैं चाहता हूँ,